اے سلیمان علیہ السلام آپ ہمیں حکم دیں، ہم پلک جھپکنے سے پہلے اس تخت کو آپ کے پاس لے کر کے آئیں گے۔ پلک جھپکنے سے پہلے اس تخت کو آپ کے پاس لے کر کے آئیں گے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے، ہمیں تمہاری یہ بات منظور ہے، اچھی لگی، ٹھیک ہے وہ تخت لے کر کے آؤ۔ حضرت سلیمان کی پلک جھپکی۔ آصف سلیمان علیہ السلام، آپ کو اللہ رب العزت نے نبوت کے ساتھ ساتھ اللہ نے آپ کو پوری دنیا کی بادشاہت بھی عطا فرمائی۔ اللہ نے آپ کو اتنا پاور عطا فرمایا کہ آپ کی حکومت انسانوں پر بھی ہے، آپ کی حکومت جناتوں پر بھی ہے، آپ کی حکومت چرند و پرند پر بھی ہے۔ اللہ نے وہ مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو عطا فرمایا۔ ذرا غور کرتے چلیں، حضرت سلیمان علیہ السلام نے تمام لوگوں کو جمع ہونے کا حکم دیا۔ آپ کی مجلس میں جنات بھی بیٹھتے تھے، چرند و پرند بھی آپ کی مجلس میں ہوا کرتے تھے، سب کو آپ نے جمع ہونے کا حکم دیا۔ سب جمع ہو گئے۔ حضرت سلیمان نے انسانوں کی طرف دیکھا تو تمام لوگ موجود ہیں۔ نبی کی بصارت بھی بڑی تیز کی ہوتی ہے۔ انسانوں کی طرف دیکھا سب موجود، جناتوں کی طرف دیکھا سب جنات موجود۔ جب آپ نے پرندوں کی طرف دیکھا وَتَفَقَّدَ الطَّيْرُ، اور جب پرندوں کا جائزہ لیا فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدْ، حضرت سلیمان نے کہا مجھے کیا ہو گیا، میں ہدہد کو نہیں دیکھ رہا ہوں۔ ام کان من الغائبین، کیا ہدہد باقی غائب ہے؟ جب پرندوں نے محاسبہ کیا، جائزہ لیا تو کہا اللہ کے پیغمبر ہدہد واقعی غائب ہے۔ حضرت سلیمان نے کہا لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا، اسے آنے دو میں اسے سخت عذاب دوں گا، او لَأَذْبَحَنَّهُ، یا اسے ذبح کر دوں گا، او لَيَأْتِيَنِّ بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ، یا ہمارے پاس کوئی روشن سند لے کر کے آئے کہ آخر کس وجہ سے وہ غائب ہو گیا۔ آج حضرت سلیمان علیہ السلام درس دے رہے ہیں نا، وہ ہماری درسگاہ سے غائب کیوں ہے بغیر بتائے؟ یا تو ہمارے پاس کوئی ایسی سند لے کر کے آئے، کوئی ہمیں بات بتائے جس کی وجہ سے وہ غائب تھا۔ ابھی یہ بات چل رہی تھی، اتنے میں ہدہد اڑتا ہوا آ گیا۔ ہدہد پرندہ ہے، اڑتا ہوا آ گیا۔ جب وہ آیا حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس سے پوچھا اے ہدہد کہاں تھا تو، کیوں غائب ہوا، کسے بتا کر کے گیا؟ تو ہدہد نے کہا اے اللہ کے پیغمبر، اے سلیمان علیہ السلام، ہم ایک ایسے شہر میں گئے جس جگہ ایک عورت بادشاہت کرتی ہے، اور وہ ایک ایسے تخت پر بیٹھی ہوئی تھی جو تخت 80 گز لمبا 40 گز چوڑا، سونے اور چاندی کا وہ تخت ہے، ہیرے جواہرات اس میں جڑے ہوئے ہیں۔ اس تخت پر وہ بیٹھی ہوئی تھی اور اس کے پاس سب کچھ ہے، لیکن میں نے دیکھا کہ وہ اللہ کو چھوڑ کر کے سورج کو سجدہ کرتی ہے۔ اس کے رعایا، اس کے وزیر، اس کے مشیر سب سورج کو پوجتے ہیں، سورج کی عبادت کرتے ہیں، وہ ایک اللہ کو نہیں مانتے ہیں، وہ وحدانیت کا انکار کرتے ہیں، وہ اللہ کو نہیں مانتے، وہ سورج کی پوجا کرتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب اتنی بات سنی، حضرت سلیمان نے کہا کیا واقعی تو سچ کہہ رہا ہے؟ حضرت سلیمان نے ایک خط لکھا۔ خط لکھنے کے بعد آپ نے ہدہد کو دے دیا کہ یہ خط لے جا، اور وہ عورت جو بادشاہت کرتی ہے جس کا نام ملکہ بلقیس ہے، اس عورت کے پاس اس کی جھولی میں یہ خط ڈال دینا، اور پڑوس میں بیٹھ کر کے اس کی گفتگو کو سننا، اس کی بات کو سننا کہ آخر وہ اب کیا کہہ رہی ہے۔
हुदहुद गया उड़ते उड़ते। जाने के बाद मलिका सबा, मलिका बल्कीस की झोली में उसने उस खत को डाल दिया। जैसे ही उस खत को सबा बल्कीस ने खोला, खोलने के बाद अपने मुशीरों को बुलाया। उस खत का मजमून ये था, अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। मैं सुलेमान अलैहिस्सलाम, मैं तुझे दावत देता हूं कि तू इस्लाम कबूल कर ले और हमारे पास चली आ। सूरज की पूजा करना छोड़ दे, सूरज की इबादत करना छोड़ दे, बल्कि एक रब की इबादत कर। जब उसने खत खोला, खोलने के बाद जब उसने अपने मुशीरों को पढ़ करके सुनाया तो उसके जो वजीर और मुशीर थे कहा था, ऐ सबा बल्कीस, मेरे पास ताकत भी है, मेरे पास इज्जत भी है, मेरे पास मर्तबा भी है, हमारे पास सब कुछ है। अगर तू इजाजत दे तो हम उनसे जंग करेंगे, हम उनसे जंग लड़ेंगे। मलिका बल्कीस ने कहा, नहीं, हम उससे जंग नहीं लड़ेंगे, हम खूनरेजी नहीं बहाएंगे, बल्कि एक काम करेंगे कि उसकी तरफ हम बहुत सारे हदिया और तोहफा भेजेंगे। अगर वो वाकई अल्लाह का नबी होगा तो हमारे तोहफा को कबूल नहीं करेगा, और अगर वो सिर्फ बादशाह होगा तो सिर्फ ये दौलत हासिल करने के लिए काम कर रहा है, सिर्फ दौलत को हासिल करने के लिए काम वो करेगा। मलिका बल्कीस ने बहुत सारे ऊंटों को, बहुत घोड़ों को, हजारों गुलामों को, हजारों कनीजों को, यहाँ तक के बहुत सारा साजो सामान, दौलत, सोना चांदी, हीरे जवाहरात हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास लेकर के भेजे। जब उसके वजीर लेकर के गए, इधर से हुदहुद उड़ करके हजरत सुलेमान की बारगाह में गया और कहा था, ऐ बादशाह सुलेमान अलैहिस्सलाम, ये मशवरा हुआ है, उसके कारिंदे और उसके वजीर उसके पास से हदिया और तोहफा बहुत सारा लेकर के आ रहे हैं, और उसने कहा कि अगर वो अल्लाह के नबी होंगे तो हमारे तोहफे और हदिये को कबूल नहीं करेंगे, और अगर सिर्फ बादशाह होगा तो वो हमारे तोहफे को कबूल कर लेगा, सिर्फ वो दौलत हासिल करने के लिए काम करेगा, सिर्फ दौलत कबूल करने के लिए काम करेगा। जब उसके पास, जब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास मलिका बल्कीस के वजीर और कारिंदे जब बहुत सारा तोहफा और हदिया लेकर के गए और कहा था, ये लीजिए, ये मलिका बल्कीस की तरफ से तोहफा आपको भेजा गया है, तो हजरत सुलेमान का जवाब सुनो। ओ दौलत के नशे में अपनी जिंदगियों को बर्बाद करने वालों, दौलत के नशे में अपनों से झगड़े करने वालों, दौलत के नशे में एक दूसरे के सर को फोड़ने वालों, दौलत के नशे में एक दूसरे की जिंदगी को तबाह करने वालों, दौलत के नशे में एक दूसरे को जेल की सलाखों के पीछे डलवाने वालों, सुनो, हजरत सुलेमान की जिंदगी से सबक हासिल करो। हजरत सुलेमान के पास जब मलिका बल्कीस के वजीर और कारिंदे गए तो हजरत सुलेमान ने कहा, तुम हमें दौलत देकर के खरीदना चाहते हो और तुम ये समझते हो कि हम खामोश बैठ जाएंगे। अल्लाह का दिया हमारे पास सब कुछ है, ये अपने तमाम तोहफे तहाइफ हदिया अपना वापस लेकर के चले जाओ और अपनी बादशाह से कह देना कि अगर वो हमारे पास नहीं आती है, अगर उसने इस्लाम कबूल नहीं किया तो अब हम अपनी फौज लेकर के आएंगे और उससे कह देना कि जंग करने के लिए तैयार हो जाए। जब मलिका बल्कीस के पास ये उसके वजीर और कारिंदे गए और कहा था, अरे मलिका बल्कीस, वो तो बहुत जलाली बादशाह हैं, वो वाकई हमें लग रहा है कि वो अल्लाह के नबी हैं, उन्होंने हमारे तोहफे को कबूल न किया, उन्होंने हमारे हदिये को कबूल न किया और हमें वापस कर दिया। कहा, अपने ये तोहफे लेकर के वापस चले जाओ, अपने ये तोहफे लेकर के चले जाओ, हमें जरूरत नहीं है। हजरत सुलेमान ने जब वापस किया, वो वजीर और उसके कारिंदे वापस गए, जाकर के पूरा किस्सा सुनाया और कहा था, ऐ मलिका बल्कीस, अब उन्होंने कहा कि अगर वो हमारे पास नहीं आएगी तो हम अपनी फौज को लेकर के आएंगे, हम उससे जंग करेंगे, उससे कह देना कि जंग करने के लिए तैयार हो जाए। मलिका बल्कीस ने यह सुना कि अब वो किसी हालत में मानेंगे नहीं।
मलिका बल्कीस के पास एक तख्त था जो सोने और चांदी से बना हुआ था, हीरे और जवाहरात उसमें जड़े हुए थे। मलिका बल्कीस का तख्त 7 कमरों के अंदर बंद था और हर कमरे के बाहर बड़े बड़े ताले पड़े हुए थे। कहा था कि ये हमारा तख्त कोई उठा न ले जाए, ये हमारा तख्त कोई चुरा न ले जाए। उसने 7 कमरों के अंदर उस तख्त को बंद कर दिया, बड़े बड़े ताले लगा दिए। फिर जब वो चली है मुल्क शाम से, चलने के बाद अल्लाह अकबर, जब वो चली, हुदहुद ने खबर दी, ऐ अल्लाह के पैगंबर, वो अपनी जगह से चल दी है, वो आपके पास आ रही है। ऐ अल्लाह के पैगंबर, उसके पास बड़ा हसीनो जमील तख्त है। हजरत सुलेमान ने कहा, क्या तुम में कोई ऐसा है जो वो तख्त उसके आने से पहले लेकर के आए? काल इफ्रीतुम मिनल जिन्न, एक जिन उठा, जिन ने कहा, ऐ सुलेमान अलैहिस्सलाम, जो शरारत वाला जिन था, जिन उठा। उठने के बाद उसने कहा, ऐ सुलेमान अलैहिस्सलाम, आप हमें हुक्म दें, हम ये मजलिस खत्म होने से पहले पहले उसका तख्त हम आपके पास ला करके रख देंगे। अब हजरत सुलेमान का जवाब सुनो। हजरत सुलेमान ने कहा, बैठ जाओ, तुमने बहुत टाइम लगा दिया है, इतनी देर में नहीं, बल्कि उससे भी पहले कोई ला सकता है। उससे पहले कोई उस तख्त को ला सकता है। तो एक इंसान उठा जिसका नाम रिवायात में आसिफ बिन बरखिया बोला जाता है। जब वो उठे, उठने के बाद कुरान ने कहा कि एक ऐसा शख्स, एक ऐसा इंसान उठा जिसके पास अल्लाह की किताब का इल्म था, ज़बूर का इल्म था। वो उठे, उठने के बाद कहा, ऐ सुलेमान अलैहिस्सलाम, आप हमें हुक्म दें, हम पलक झपकने से पहले उस तख्त को आपके पास लेकर के आएंगे। पलक झपकने से पहले उस तख्त को आपके पास लेकर के आएंगे। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा, ठीक है, हमें तुम्हारी ये बात मंजूर है, अच्छी लगी, ठीक है, वो तख्त लेकर के आओ। हजरत सुलेमान की पलक झपकी, आसिफ बिन बरखिया ने वो तख्त ला करके पेश कर दिया और कहा, हुजूर ये लीजिए तख्त, ये तख्त लेकर के आए हैं। जरा गौर करो मेरे अजीजों, यहीं से हमें ये फिक्र और ये नजर मिलती है। जब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का उम्मती आसिफ बिन बरखिया, जिसका जिक्र रब ने कुरान के अंदर बयान फरमाया, उसके पास अल्लाह की किताब का इल्म था। कौन सी किताब? ज़बूर का इल्म था। वो पलक झपकने से पहले जब वो तख्त लेकर के चले आए, तो मेरे अजीजों, आज जो कहते हैं कि गौसे आजम ने मुर्दों को जिंदा नहीं किया, जो ये कहते हैं गरीब नवाज हमारी फरियाद नहीं सुन सकते हैं, जो ये कहते हैं कि गरीब नवाज हमें कुछ नहीं दे सकते हैं, अरे जब सुलेमान अलैहिस्सलाम का उम्मती और वो उम्मती जिसके पास ज़बूर का इल्म था, जब वो पलक झपकने से पहले तख्त मुल्क शाम से, जब वो तख्त हज़रत सुलेमान की बारगाह में लेकर के आ सकता है, तो जरा अगर गौसे आजम कहते हैं ऐ मुर्दे जिंदा हो जा, तो वो गौसे आजम जो सैयदुल अंबिया के उम्मती हैं, वो गौसे आजम जिनके पास ज़बूर का इल्म नहीं बल्कि कुरान का इल्म है, अगर वो गौसे आजम कह दें कि मुर्दे जिंदा हो जा और मुर्दा जिंदा होकर के उठ जाए, तो मेरे अजीजों उस पर एतराज कैसा, उस पर उंगली उठाना कैसा? जरा गौर तो करो। अल्लाह अकबर। जब हजरत सुलेमान का उम्मती कोसों मील दूर से तख्त पलक झपकने से पहले लेकर के चला आए, अगर गौसे आजम कहते हैं हमने मुर्दों को जिंदा किया, तो आज कुछ लोगों के पेटों में दर्द होने लगता है। नहीं जी, ऐसा नहीं हो सकता। होश के नाखून लो, अहमद रजा के इश्क का चश्मा लगाओ, तासुब का ऐनक हटाओ, सब सामने आ जाएगा कि किसने क्या किया। जरा गौर करें। जब वो तख्त लेकर के आए, लाने के बाद हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा,
کہ اس میں کچھ خروچے لگا دو، کچھ اس میں ایسے نشان بنا دو تاکہ وہ پہچان نہ سکے یہ ہمارا تخت ہے۔ دیکھیں وہ پہچان لے گی یا نہیں پہچانے گی۔ جب وہ آئی، آنے کے بعد اس نے دیکھا، حضرت سلیمان نے اس سے کہا کہ تمہارا بھی تخت کیا ایسا ہی ہے؟ تو ملکہ بلقیس نے کہا ہمارا تخت ایسا ہی نہیں بلکہ یہی ہمارا تخت ہے، یہی ہمارا تخت ہے۔ اسے معلوم ہو گیا، اس کے سامنے سب بات آ گئی کہ یہ واقعی اللہ کے نبی ہیں۔ فوراً اس نے حضرت سلیمان کا کلمہ پڑھ لیا اور اسلام کے دامن سے وابستہ ہو گئی۔ میرے عزیزوں ذرا غور کریں، حضرت سلیمان علیہ السلام کا وہ پاور اللہ نے عطا فرمایا تھا، وہ طاقت اللہ نے عطا فرمائی تھی۔ حضرت سلیمان کی دنیا پر بادشاہت تھی، دنیا پر حکمرانی تھی، لیکن میرے عزیزوں کبھی کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کی، کبھی کسی کے ساتھ ظلم نہیں کیا، کبھی کسی کو بھوکا رہنے نہیں دیا۔ یہ ہوتی ہے نبیوں کی بادشاہت، یہ ہوتی ہے مومن کامل کی بادشاہت۔